Right, so we'll go again. Virtual machine. Create. It will ask, it will pre-fill because we are going through the resource group anyways, so it will pre-fill this information. We'll provide the name VM1, or we can give it the name VM dash Windows Win. Okay, so I am giving the name because we will be creating another virtual machine which will be Ubuntu or something, so we're just keeping this. We'll select no infrastructure redundancy, we don't need. We'll keep the security type to trusted, and we'll pick the operating system. So I'll keep little bit old so it goes quick. Let me say someone joined here. Okay, so we have our operating system we are selecting here. We are creating a virtual machine and we are selecting the operating system 2016. We'll keep everything same. This is the lowest one, which is 850 rupees per month, and one virtual CPU, 1 GB RAM we will get. We'll provide the username. Generally I provide Azure user, and then the password of the Azure user will provide. It should be 13 characters, one special character, something like this. Okay, so it's matching. And when we go to inbound port, let me see. So when we go to inbound port, basically it is asking which port you would like to keep open. So we would like to open a port by which we can connect to the machine using remote desktop connection. I hope everyone understand about the remote desktop connection. If anyone is having doubt, let me know. I will explain you. Okay, so we will connect with the inbound port on RDP, and that port works or the RDP generally works on 3389 port. This is the port number. We'll go on next, and it will ask about the disk, what you would like to do with the disk. So it offers minimum 127 GB. If we want more, but again, the cost will be changed here. Been taking long time. 12,000. Oh my god. And here you see 2000. So how big difference is 512 GAV 6000. So as we increase the size of the virtual machine or disk size, the cost will increase, and we'll keep the standard one, so it will again decrease the cost. And if I go for this one, standard HDD, it will decrease it further, so maybe 200-300 rupees or something like this. Okay, so I will keep it standard in the middle range. Others we have already discussed yesterday, so I'll quickly go, but I just want to bring your. Yes, सर Ujjwal. आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है मेरे उसमें. Thanks for informing. I'll stop and reshare. Abhi okay? हाँ सर. Okay, moving right? Okay. Yeah, अगर ऐसा कुछ भी होता है, please inform me. I will, make it sure. तो how much time it was freezed? नहीं सर ज्यादा टाइम. अच्छा ठीक है. 1-2 मिनट. ठीक है, तो आपने एक का. प्रीवियस स्टेप तो देख लिया था ना? हाँ सर वो बाकी तो पता ही है. अच्छा
ठीक है, हाँ वैसे तो हमने कवर कर रखा है बट आई एम क्विकली गोइंग थ्रू दैट। ठीक है, तो बेसिकली इस स्टेप में क्या है, वी आर क्रिएटिंग अ नेटवर्क इंटरफेस। ओके, so we are selecting virtual network, but when we, you know, when we check in our resource group जो हमने अभी बनाया है, we don't have any virtual network. So I'll show you. Let me open in another tab. I'll go to resource groups and I'll select my resource group. एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी कुछ भी बना हुआ नहीं है, तो लेट इट लोड फर्स्ट। तो आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं है लोडेड, मीन्स देयर इज नथिंग इनसाइड। बट हियर व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन देयर इज डिपेंडेंसी दैट आपको वर्चुअल नेटवर्क होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली एक वर्चुअल नेटवर्क हमारे लिए बना लेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये नाम दे देगा वी एम विन वी नेट ऐसा करके। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो या तो आप पहले बना के रखो इसकी डिपेंडेंसी, या फिर आप यहाँ से क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्रिएट न्यू करेंगे तो एक पॉपअप खोल देगा, उसी में आपको इसका नाम दे सकते हैं वीनेट 1 और समथिंग। एड्रेस रेंज वगैरह सब डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं, सब कुछ डिफ़ॉल्ट ओके कर लेते हैं। तो हमारा एक न्यू वीनेट बना देगा ये with the whatever we selected in it, if multiple subnets etc. Same way, if we are having a public IP we can select from here. If we are not having तो वो न्यू ब्रैकेट में लिख के देगा जिसमें वो इट्स क्रिएटिंग न्यू public IP for that virtual machine. And if you want it you can create it manually, so same way it will create, and you can give the name, for example I'll give public IP or something. Then we'll go with the static, standard, and Microsoft Network. And this I wanted to change, but it's not changing. Okay, fine, no problem. Okay, so मैंने जो public IP बनाया है, I think yeah, it is already populated here, and now I can see that network security group कौन सा है। ठीक है, पब्लिक वो अपना हमें जो RDP रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे कनेक्ट करना है, तो हमारा 3389 हमें ओपन चाहिए, वो भी है इसमें। These are not mandatory ones, so load balancing we will keep it none because it is not behind the load balancer. We will be connecting it directly. Next, management में हमें कुछ भी चेक नहीं करना है, हमें कोई भी एडवांस सर्विसेज लाइक डिफेंडर या ऐसा नहीं चाहिए। हो सकता है आपके एनवायरनमेंट में आपको ज़रूरत पड़े इसकी। ठीक है, ये आपकी जो आइडेंटिटी वाला है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बिफोर वी मूव अहेड। तो अगर हम सिस्टम असाइंड मैनेज्ड आइडेंटिटी इनेबल करते हैं तो इसमें इसको एक आईडी मिल जाएगा बेसिकली। आई थिंक आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल अबाउट द आइडेंटिटी इन एंट्रा आईडी पार्ट। अगर आप रिमेंबर करते हैं तो उसमें हमें सिक्योरिटी प्रिंसिपल मिल जाता है, एक आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड जैसे होता है वैसा कार्ड। तो अगर मशीन को आइडेंटिटी देनी है जिसको आप आइडेंटिफाई करके कुछ कर सकते हैं तो आप आइडेंटिटी इसमें लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके एंटर आईडी यूज़र इस मशीन पे लॉगिन कर सकें तो आप यहाँ से लॉगिन भी करवा सकते हैं, मीन्स उसको इनेबल कर सकते हैं बेसिकली। आई डोंट नो व्हाई इट इज डिसेबल, इट शुड नॉट बी यूजर कॉर्पोरेट। ओके, I think later on maybe we can enable it, but right now it is disabled here. But this is what this image doesn't support the login with। तो ये image का भी रहता है, अगर थोड़ा image so this is the reason why it is disabled। If we will select another image, maybe higher one, then it will allow us to log in from Entra ID, or any user we can give the access to this virtual machine। तो कंपनीज में दो तरीके के सिनेरियो होते हैं। फर्स्ट सिनेरियो ये होता है कि आपके सभी को एंटर आईडी यूजर नेम पासवर्ड मिले होते हैं और वो लोग इस पे लॉगिन कर सकते हैं, तो दे प्रीफर दैट एवरीवन लॉगिन यूजिंग देयर ओन आईडी विच इज़ द एंटर आईडी। सेकेंड सिनेरियो होता है कि आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट मैनेज कर रहा है या आपको उससे को रिलेट नहीं करना है, या मशीन जो मैनेज कर रहा है दे आर हैविंग देयर ओन यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑन द मशीन इटसेल्फ, तो उस केस में ये इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये आइडेंटिटी वाला केस क्या है कि ये सिस्टम असाइन मैनेज आइडेंटिटी जब हम इनेबल करते हैं एज्योर रिसोर्स पे, तो ये ऑथेंटिकेट कर सकता है
क्लाउड सर्विसेज पे, जैसे की वोल्ट पे या कोई भी क्लाउड सर्विस हम इस मशीन के थ्रू एक्सेस करेंगे तो हमें पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस मशीन को पहचान लेगा, तो वो रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट कर लेगा। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आर कनेक्टिंग विद स्टोरेज अकाउंट, तो इस मशीन में अगर कोई एप्लीकेशन है वो अगर स्टोरेज अकाउंट से कनेक्ट करने वाली है, तो हमें मैन्युअली उसको ऑथेंटिकेट करना होगा। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है कई बार, अगर आप ऐसे करते हैं तो उसमें पासवर्ड आपको सेव करना होता है, टोकन आपको सेव करना होता है। अगर हम आइडेंटिटी दे देते हैं तो स्टोरेज अकाउंट को पता है कि ये वाली मशीन को ये आईडी मिला हुआ है और ये ऑथेंटिकेट कर सकता है। तो दिस इज़ व्हाट द रीज़न। बट ये जब मशीन हम डिलीट करेंगे तो ये आईडी भी इसके साथ में डिलीट हो जाएगा। ओके, सो दैट आईडी वी विल लूज। अगर हम यूज़र असाइंड आइडेंटिटी बनाते हैं इस केस में, तो उस केस में हम वो आईडी हमारा जिंदा रहेगा, बिकॉज दैट आईडी इज सेपरेट फ्रॉम द मशीन इटसेल्फ। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको ध्यान में रखना है। एंड आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको ऑटो शट डाउन करना है मशीन को, कि ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए, जब आप शेड्यूल कर सकते हैं, आपका पैसा बचाना है, मतलब कॉस्ट बचानी है हमें, तो उस केस में वी कैन डू दिस, दैट वी कैन शेड्यूल इट। तो ओके, आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट आफ्टर 7 PM फॉर एग्जाम्पल, और 8 PM, वट एवर, then I can automatically shut down this machine. If I want to backup this machine, enable the backup services, I can do that, but that will cost me additionally, I think. So let's see what is the impact here. Okay, so 2 का 4 हो गया सीधा, 2000 something it was and 4000 it became. So that's how it will cost, and the retaining the backup. ओके, एंड देन पेज ऑर्केस्ट्रेशन ऑप्शन, तो विंडोज़ ऑटोमेटिक अपडेट से आपके पेजेस अपडेट होते रहेंगे। ओके, एंड आई डोंट थिंक देर इज एज्योर ऑर्केस्ट्रेट आल्सो है ना, मैनुअल आप अगर करना चाहें, आप ही मैनेज करना चाहें तो वो ऑप्शन भी है। तो ये विंडोज़ अपडेट के बारे में है। लेट्स गो मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में आपको अलर्ट्स वगैरह रूल चाहिए इनेबल करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप अलर्ट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस मशीन के लिए। जैसे अगर मैंने ये इस तरीके से अलर्ट किया है कि अगर 80% मेरा मशीन अगर यूज़ होता है, CPU अगर 80% प्लस हो रहा है, या मेमोरी, तो ये अलग अलग कंडीशन है, मैं इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ईमेल भेज देगा ये, ठीक है। ईमेल एज्योर रिसोर्स मैनेजर रोल, ओके, तो ये भी मैं कर सकता हूँ ईमेल, अगर एज्योर रिसोर्स मैनेजर रोल पे भेजना है, ऐप नोटिफिकेशन कहाँ भेजना है, ऐप से रिलेटेड है, तो एंड इट विल हैव इट्स ओन कॉस्ट, मंथली कॉस्ट। तो ये हम इनेबल कर सकते हैं। आई विल कीप इट डिसेबल्ड। ओके, तो इसको अलग अलग तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर अगर बूट डायग्नोस्टिक को आपको कलेक्ट करना है, जैसे कि बूट हो रहा है तब आपका उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो इसमें इनेबल विद मैनेज्ड स्टोरेज, तो ये स्टोरेज में आपका हो जाएगा। हमें इस टेस्टिंग के लिए ज़रूरत नहीं है इसका। इनेबल OS गेस्ट डायग्नोस्टिक, अगर ये कुछ मेट्रिसेस आपको इकट्ठी करनी है तो वो कर सकते हैं। इनेबल एप्लीकेशन हेल्थ मॉनिटरिंग, अगर इसमें कोई एप्लीकेशन चल रही है उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग आपको एक्टिवेट करनी है, तो वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये इस पोर्ट पे चेक करता रहेगा। व्हाट इट विल डू, लेट्स सी इन द कॉन्फ़िगर। So you can configure health monitoring on application endpoint to update the status of the application on instance, ठीक है। This instance status is required to enable platform manage upgrades like automatic OS, and ये सब होना चाहिए, ये इसका ज़रूरत है, ठीक है। हेल्दी अनहेल्दी बताएगा ये, इस प्रोटोकॉल पे ये क्वेरी करके देखेगा। जैसे ही ये इस पे रीच नहीं कर पाएगा, जैसे HTTPS भी कर सकते हैं आप, उस केस में 443 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर ये इसको रीच आउट नहीं कर पा रहा है इस पे, तो वो अनहेल्दी डिक्लेयर कर देगा उसको, ठीक है। ये एक फीचर है, ये इट कैन बी डन हियर। सो नेक्स्ट, एडवांस में गए, अगर आप कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाहते हैं इस पे, ठीक है, जो कि वर्चुअल मशीन जब बन जाए आपकी, तो आफ्टर द डिप्लॉयमेंट, पोस्ट डिप्लॉयमेंट आपको कुछ इंस्टॉल करना है एक्सटेंशन, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आई थिंक एजेंट फॉर मॉनिटरिंग, देर आर सम क्वाइट फ्यू, बट मॉनिटरिंग का है, आई थिंक इट्स लाइक agent for monitoring, it was, yeah, I think this is the one only, but I will go for monitoring, agent for monitoring. Let's see what it is. So this is the one.
ये आपके अगर इस रिसोर्स को मॉनिटर करना है तो उसमें ये बहुत काम आएगा। इस टाइप का आप कुछ बना सकते हैं एजेंट। तो ये आप स्टडी कर सकते हैं, इनके बारे में देख सकते हैं, एजेंट फॉर क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन, इस तरीके से काफ़ी है। ठीक है, तो दीज सर आर ये सम ऑफ। एक्सटेंशंस भी पेड है ना? आई थिंक दीज आर फ्री। आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट एक्सटेंशन तो फ्री होना चाहिए। लेट्स ट्राई वन मे बी। वी इफ सेलेक्ट दिस एंड वी से नेक्स्ट। ओह नो, ये नहीं है। There was some agent I know for monitoring, but I don't recall the name right now. If I can find, let's see. इससे एसोसिएट सर्विस जरूर आपकी थोड़ी सी कॉस्टली होगी। ये मुझे पक्का पता है। जैसे हर एजेंट या तो कोई डेटा कलेक्ट कर रहा है या कोई इंफॉर्मेशन, आई थिंक या दिस वन, ये वाला एजेंट देखना था। नेटवर्क वॉचर फॉर विंडोज एक्सटेंशन। ओके, इट विल क्रिएट द एजेंट। तो इससे कोई कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आपका नेटवर्क वॉचर या जो सर्विस है वो अगर इससे जुड़ेगी और उसके साथ में, तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये इंस्टॉल कर लेगा यहाँ पे। और अगर इससे रिलेटेड कुछ सर्विसेज हैं, जैसे आपने स्टोरेज अकाउंट यूज़ किया या ऐसा कुछ जो इससे इसके लिए रिक्वायर्ड है, तो वो आपको अलग से कॉस्ट करेगी। इस वीएम में वो कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी। दिस इज़ हाउ इट इज़। ठीक है। देन वीएम एप्लीकेशन अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आई थिंक आई नेवर ट्राइड दिस, बट दे शुड हैव सम एप्लीकेशंस और समथिंग। अगर वीएम एप्लीकेशन आपकी गैलरी में आपने कुछ बना रखी है, मीन्स इसमें आप कुछ एप्लीकेशन का ऐसा गैलरी बना के रख सकते हैं, और वो एप्लीकेशन यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो हमेशा आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं और उसमें इंस्टॉल करनी होती है, एंड दीज आर लाइक स्टैटिक एप्लीकेशंस, देन आप उसको गैलरी में मेंटेन कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर हियर। देन कुछ अगर स्क्रिप्ट चलानी है आपको, जब वीएम बन जाए तो वो यहाँ पे आप करके चला सकते हैं। ठीक है, एंड दीज आर सम, यू नो, यू कैन इवन इनेबल द यूज़र डेटा। ये भी आप अगर इसमें पुश करना चाहें तो कुछ कोड की तरफ पुश कर सकते हैं। दीज आर लिटिल बिट एडवांस फीचर। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट एंड टेक्स। इतना एडवांस में कोई मतलब करता नहीं है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि अगर आप वो डिप्लॉय कर रहे हैं, अगर डेवॉप्स में डिप्लॉय कर रहे हैं तो डेवॉप्स में ऑलरेडी वो सारा टेकन केयर होता है। ठीक है। Now we will go for review and create. So we lock this basically after having a validation here on top. हमें ये पता हो जाएगा कि ये वैलिड है और हम कर सकते हैं। सो पास हो गया। Okay, so what is the warning here? You have set RDB port open to internet. This is only recommended for testing. हाँ, तो ये एक थोड़ा सा आपको गाइड देगा यहाँ पे, वार्निंग या जैसा कि ये रिकमेंडेड नहीं है बेसिकली आपके रिमोट डेस्कटॉप पे कनेक्ट करें। ठीक है, बिकॉज दे हैव वन सर्विस टू सेल विच इज़ कॉल्ड बास्टियन। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सिक्योरिटी आल्सो दे कवर, बट दे कवर देयर बिजनेस एज वेल। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओके। नाउ we hit the create button and it initialize the deployment। अभी ये डिप्लॉयमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी और ये कुछ एक रैंडम सा नंबर दे देगा आपको। एंड अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये सब अभी क्रिएट हो रहे हैं, मतलब ये राउंड राउंड साइकिल जैसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसकी डिपेंडेंसीज बनाएगा। पहले वर्चुअल मशीन का कहीं नाम भी नहीं आ रहा अभी तक, अभी आया है। तो सबसे पहले वो डिपेंडेंसी, उसने वीनेट बनाया, एनएसजी बनाया, आईपी बनाया, और अब यू नो वीएम, ये नेटवर्क कार्ड है। दिस वन इज नेटवर्क कार्ड। थोड़ा कंफ्यूजिंग नाम दे दिया इन्होंने। तो ये नेटवर्क कार्ड है। अब वो लास्ट में क्या कर रहा है, वर्चुअल मशीन बना रहा है। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। तो पहले डिपेंडेंसी रेडी होगी, फिर बाद में वर्चुअल मशीन बनेगी। तो ये देखो, नेटवर्क इंटरफेस है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, और ये वर्चुअल नेटवर्क है। इतनी सारी डिपेंडेंसी है वर्चुअल मशीन बनाने के लिए। तो let it be created. Meanwhile, if anyone is having any question, can put
और यहाँ पे आपको इनपुट्स मिल जाएंगे आई थिंक या दिस ऑल इनपुट्स वी प्रोवाइडेड and output I think this creating and overview will give you the progress. Meanwhile we can go to another tab and we can see refresh this and we can see in this resource group कि क्या हो रहा है. तो इधर इतने सारे resource